गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? मज़े में? होमवर्क चल रहा है कि नहीं? क्योंकि हम लोग जब डाउट सॉल्व करते कोई बच्चा आता ही नहीं और जैसे ही नोटबुक का बोले गायब। ऐसे नहीं करना है बेटा। तुम लोगों को पता है तुम्हारी एग्ज़ाम जो है इस बार तुमको बोर्ड की एग्ज़ाम देनी है। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बट स्कूल में क्या है, तुमको थोड़ी IMP वगैरह मिलती है या तुमको थोड़े टीचर्स बता देते हैं। बोर्ड में वैसा कुछ नहीं होता, सो बी सीरियस, है ना? तो ये लेक्चर के बाद आए हो तुम लोग थोड़े सुधर जाओगे, बराबर कि नहीं? तो देखो हम लोग आते हैं अभी हमारे फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर। वेरी नाइस चैप्टर, दिस इज द 100 ड्रेसेस 1। एक्चुअली दिस चैप्टर इज हैविंग 2 पार्ट्स। 6th one is the same chapter, the 100 dresses part 2. So in this lecture I am going to teach you the first part of the 100 dresses 1. It is written by L. Esther. So before you read, the author has asked some questions to us. So what are these questions? Let's say, how did we judge the people around us? By their money, wealth and possessions? Or is there something of more enduring value to look for in a person? हम लोग लोगों को जज कैसे करते हैं? जैसे कुछ बच्चा होता है वो अनटाइडी क्लोथ्स पहने हुए हैं, या कोई बच्चा है जो बहुत ही स्मार्ट है तो हम लोग उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं। बट जो अनटाइडी है, जो थोड़ा फिजिकली भी उसका फिट नहीं है, वो उसकी जो कंडीशन है घर की वो भी सो है, तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। हम लोग हमेशा उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। ये जनरल नेचर हुआ ह्यूमन का, ओके। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी क्वालिटीज दैट वी कैन कॉलिंग देम इनर क्वालिटीज, जो इनर क्वालिटीज की वजह से वो लोग अपने जो भी टैलेंट है उसकी वजह से लोग उनको मानते हैं, या हमारे माइंड में वो हमेशा के लिए याद रहते हैं। ऐसी स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, तो देखते हैं। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. Wanda Petronovsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? So here one girl is there. She is a Polish girl from Poland, and her name is Wanda Petronovsky. Wanda Jane Petronovsky is her name. So these Petronovsky is her surname, and the girl is hated by or commented by other classmates because she is from the poor family. So no one is giving the value to her, and actually her nature is totally different from others. So how the other classmates treat her? As they are treating her very badly, then also how her behavior is not changed. So we are going to see in the same lecture. So that is why the author is saying that just read the chapter, you will get the understanding. The Polish American community in United States of America. Little bit paragraph or information is given about the Polish community. Actually they are the refugees, okay. They are the inhabitants of Poland, but because of some consequences they have to roam from here and there. So one type of community is there, it is living in the backward area, or we can call it in slums, okay. So there means about the community it is given. So what is this? Let's see. Keep attention over my words, okay guys. The first Polish immigrants arrived in America in 1608. बेटा ध्यान दो, एग्जाम में ही आ सकता है पैराग्राफ में। फर्स्ट पॉलिश immigrants मीन्स रेफ्यूजीज, मैंने तुमको पहले ही बोला, arrived in America in the year 1608. But the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. बट उसका ज़्यादा फ्लो जो है वो 20th century में आया, when more than 1 million Poles migrated to United States. The Polish state did not exist at that time, and the immigrants were identified according to their country of origin rather than to ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Australian Poles. तीन तरह से वो लोग जाने जाते थे. फर्स्ट वन इज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड लास्ट वन इज ऑस्ट्रेलियन पोल्स. One of the most notable Polish American communities in the Chicago and its suburbs. So Chicago is famous for the second largest Polish city in the world. शिकागो के अंदर वो लोग रहते हैं और वहाँ पे सबर्ब्स मीन्स व्हाट, उनके सब कास्ट सब वहीं पे रहते हैं. इसीलिए शिकागो जो सिटी है वो पॉलिश सिटी के नाम से जानी जाती है, बिकॉज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन स्टे ओनली इन द सिटी ऑफ शिकागो.
So next only to the Warsaw, the capital of Poland, क्योंकि उसके आगे पोलैंड का कैपिटल है वॉर्सो. Polish Americans were sometimes discriminated against in the United States as they were Irish, Italians and Jews. उनके साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हुआ. Why? Because they are relating with Irish people, they are Italians and Jews. You know that Holocaust movement you already learned in SS. It is the massacre of Jews. एक साथ काफ़ी सारे ज्यूज को हिटलर ने मार डाला. तुमने यह स्टोरी पढ़ी हुई है. तो ये लोग भी उसी कास्ट के थे. ज्यूज थे, कोई इटालियंस थे, कोई आयरिश पीपल थे आयरलैंड से, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमेशा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस 667,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak languages other than English, or 0.25% of the US population. US population का 0.25 उनका एक परसेंट रेशो था, और वो लोग जाने गए क्योंकि घर के अंदर वो पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. तो 1.4% ऐसे लोग अमेरिका में हैं जो रैदर देन अमेरिका की जो लैंग्वेज है अमेरिकन, उसके अलावा वो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं. तो ऐसे जो लोग ये मिले गए, तब से उनको रेफ्यूजीज़ या ई माइग्रेंट्स के नाम से जाना गया. अमेरिका में उनको कभी भी एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिली, हमेशा उनको एक जगह से दूसरी जगह रोम करना पड़ा. तो देखते हैं अभी यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है वांडा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. अभी वो क्या बोल रही है देखो. टुडे Monday, Wanda Petronovsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girl who started all the fun, noticed her absent. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat, in the last row in room 13. She sat in the corner of the room where the rough boys, rough means mischievous boys, mastikhor, they are always doing the masti. The rough boys who did not make good marks sat at the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor. यहाँ पे अभी in the beginning of the, देखो यहाँ पे काफ़ी सारे क्या बोलते हैं हार्ड वर्ड्स है, तुम लोग पढ़ सकते हो. 9th में मैं एक्चुअल में रीड करती हूँ, 10th में ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे दिया है कि वो मंडे का दिन था. वांडा जो है वो उस दिन एब्सेंट थी. दो गर्ल्स है जिसका नाम है पैगी एंड मैडी. वो हमेशा दे यूज्ड टू मेक द फन ऑफ वांडा. वांडा को हमेशा मजाक ही उड़ाते थे. उनके अलावा और जो वांडा थी वो एक अलग नेचर की लड़की थी. वो बेंच के लास्ट कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पे रफ बॉयज़ मीन्स मस्ती करने वाले बच्चे बैठा करते थे. और वो हमेशा अगर कोई क्लास में मजाक हो तो बेंच पे से पैर मारना या ऐसे करना. तुमको पता है क्लास में काफ़ी सारे पीछे के लास्ट बेंचर्स ही ऐसा करते हैं. वहाँ वांडा बैठती थी, पर आज वो नहीं है. ये किसने नोटिस किया? पैगी ने और मैडी ने. वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी. ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, and nobody had ever heard her laugh out loud. Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile, but that was all. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat, unless it was because she came all the way from the Boggin's height and her feet were usually caked with dry mud. But no one really thought much about Wanda Petronovsky once she sat in the corner of the room. The time when they thought about Wanda was outside of school hours, at noontime when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. The next day, Tuesday, Wanda was not in school either, and nobody noticed her absence again. But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down from front with the children who got good marks and who didn't crack in the whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty, she had many pretty clothes, her hair was curly. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. They had waited for Wanda to have some fun with her, and she just hadn't come. They often waited for Wanda Petronovsky to have fun with her. अभी यहाँ पे स्टोरी दी है देखो.
मैं रीड कर रही हूँ, तुम लोगों को भी जब लेक्चर शुरू होता है अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है बेटा, क्योंकि मैं तो रीड करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रीड करती हूँ। ऐसा है तो मैं स्टोरी भी सिर्फ बता सकती हूँ, बट नहीं, हमको लाइन टू लाइन ही रीड करना है ताकि कुछ MCQ आए तो तुमको प्रॉब्लम ना आए। अभी देखो यहाँ पे बोला है कि वांडा जो है, जैसे मैंने तुमको बोला, रफ बॉयज़ के साथ हमेशा बैठती थी, फिर बाद में उसके साथ कोई बोलता नहीं था, हमेशा उसको मीन्स बैडली ट्रीट किया जाता था क्लास में। वो बहुत शाय गर्ल थी, हंसती भी थी, तो ऐसे देखो मैं तुमको करके दिखाती हूँ, ऐसे थोड़ा सा ही, बहुत ही छोटा स्माइल देती थी, वो कभी खुल के लाफ नहीं करती थी। इसकी वजह से मैडी और पैगी जो है उसका मजाक उड़ाते थे। अभी क्या हुआ देखो, एक्चुअली सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। ट्यूसडे हो गए तो भी वांडा एब्सेंट थी, किसी को उसकी पड़ी नहीं थी, एब्सेंट है। वो वेडनेसडे आया, उस दिन पैगी और मैडी जो है वो स्कूल के लिए लेट हो गए, क्योंकि वो किसका वेट करते थे, वांडा का। क्यों वेट करते थे, उसका मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि जब भी वांडा वो बोगिन हाइट इज अ वी कैन से दैट बैकवर्ड एरिया ऑफ इन यूनाइटेड स्टेट्स। तुमको पता है हमारे यहाँ पे भी अहमदाबाद में भी कुछ एरिया जैसे जो बैकवर्ड है, वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग रहते हैं या मीन्स अलग ही तरह के लोग रहते हैं, तो ऐसी एरियाज को हम लोग हाईली सोसाइटी पीपल उसको बैकवर्ड एरिया बोलते हैं। तो बोगिन्स हाइट एक अमेरिका में एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे ये जो इमाइग्रेटेड पीपल है वो वहाँ रहा करते थे, तो वहाँ से वांडा जो है वो आती थी। इसीलिए पैगी और मैडी आर बहुत बेस्ट फ्रेंड्स। मैडी जो है वो क्लास में बहुत फेमस थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहना करती थी, दिखने में भी स्मार्ट थी, उसके हेयर्स कर्ली थे, और मैडी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। पैगी जो बोली कि उसमें मैडी हमेशा यस करती थी, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स। और वो आज वेडनेसडे को स्कूल में लेट हो गए बिकॉज ऑफ वांडा। वो वांडा का वेट करते करते स्कूल में लेट हो गए, और इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि आज वेडनेसडे है तो भी वांडा क्लास में एब्सेंट है, क्योंकि वो स्ट्रीट के ऊपर खड़े रहते थे जहाँ से वांडा आती थी, और उसके कपड़े उसके पैर मिट्टी के होते थे, उसको देख के वो हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। आज भी 3 दिन हो गए वांडा नहीं आ रही है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तीसरे दिन उनको ऐसा लगा चलो देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं वांडा का, इसलिए वो वेट करते रहे वांडा का, जिसकी वजह से दे वर लेट इन स्कूल में वो लेट हो गए। इसीलिए उन्होंने नोटिस किया कि वांडा आज भी क्लास में एब्सेंट है। फिर क्या हुआ देखो, वांडा पेट्रोनस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13, उनके क्लास का नंबर था 13, didn't have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan, where one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny but not funny the same way that Petronuski was. Wanda didn't have any friend. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends. Lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in a schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the wall and ground. Wanda, Peggy would say in the most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging up in the closet? यहाँ पे देखो, हॉपस्कॉच इज अ गेम विद द चिल्ड्रन हॉप इनटू द ओवर द स्क्वायर मार्क ऑन द ग्राउंड। तुम लोग भी खेलते हो ऐसे, ग्राउंड के ऊपर स्क्वायर करके ऐसे एक पैर से तुम लोग हॉपिंग करके जाते हो, उसको हॉपस्कॉच बोलते हैं। न का मीनिंग है थोड़ा धक्का देना, लिटिल जेंटल पुश। डिडंट हैंग का राइट मीन्स उसके कपड़े अच्छी तरह से डिडंट फिट प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जैसे मैंने तुमको बोला कि वेडनेसडे बोथ Peggy and Maddie were late because of Wanda. That is why they noticed the Wanda's absent on Wednesday also. फिर क्या हुआ देखो, वांडा के बारे में बोला हुआ है कि वांडा जो थी वो रूम नंबर 13 में एक जगह पे बैठा करती थी। उसका नाम जो था वो थोड़ा, हर नेम इज वियर्ड, मीन्स नॉट इजी टू कॉल, बोलने में इजी नहीं था। काफ़ी बच्चों के नाम ऐसे थे, थॉमस, एलन, स्मिथ, जो बच्चे इजीली बुला सकते थे। एक और लड़का था जिसका नाम था बाउंस, विली बाउंस। सो many students used to make the fun of the boy also, but not much because they are having another girl, that is Wanda Petronuski. वो भी एक अलग ही थी, उसका नाम भी अलग था। तो ऐसे दो बच्चे थे क्लास में, एक था विली बाउंस और दूसरी थी वांडा पेट्रोनस्की। ये दो बच्चे जो थे उनके नाम थोड़ी वियर्ड थे, इसलिए बच्चों को बोलने में भी हार्ड पड़ता था, इसलिए बच्चे उनका मजाक करते थे। वांडा जो है
एवरी डे शी यूज्ड टू वेयर ओनली ब्लू कलर ड्रेस, फ्रॉक, ब्लू कलर का एक फ्रॉक था उसके पास, क्लीन था बट आयरन किया हुआ नहीं था अच्छी तरह से, इसलिए बच्चे उसकी ओर देखा करते थे। कभी कभी स्कूल ग्राउंड में वो लोग उसको घेर लेते थे, बीच में वो ऐसे खड़ी रहती थी, सारे बच्चे उसको घेरते थे। फिर वहाँ पे पैगी ने एक अपने फ्रेंड को धीरे से शी नज्ड द अदर फ्रेंड एंड सेड, क्या बोला उसने धक्का लेने के बाद कि कोई इसको पूछो ना, इसको मीन्स वांडा को, कि उसके पास कितने हैंग, उसका जो क्लोसेट है, क्लोसेट मीन्स हमारा एक कपबोर्ड होता है घर के अंदर, है कि नहीं, जिसके अंदर हमारे सारे चीज़ें हम लोग कपड़ा वगैरह सब रखते हैं। तो वो बोलती कि इसके क्लोजेट में कितने ड्रेस हैंग किए हुए हैं, पूछो तो ज़रा इससे कोई, ऐसे जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछ रही है। तो देखो वांडा क्या आंसर देती है, वांडा उसको आंसर देती है, यहाँ पे कुछ हार्ड वर्ड्स है स्टूडेंट्स, तुम लोगों को पढ़ सकते हो हार्ड वर्ड्स। अभी वांडा ने उसको आंसर दिया 100, वांडा वुड से 100, exclaim all the little girls incredulously and the little ones would stop playing hopscotch and listen. Yeah, 100, all lined up, said Wanda. Then her thin lips drew together in silence. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Yeah, all silk, all colors, velvet too. Yeah, velvet too, 100 dresses. Wanda would repeat stolidly. एक सेकंड, stolidly means what? Not showing any feeling. All lined up in my closet. They would let her go, and then before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. जैसे पैगी ने उसको पूछा, इसको पूछो तो कोई इसके पास कितने ड्रेस है, तो वांडा ने आंसर दिया कि आई हैव 100 ड्रेसेस दैट आर हैंग इन द माई क्लोसेट, मेरे क्लोसेट के अंदर 100 ड्रेसेस है जो मेरे कपबोर्ड में रखे हुए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो पैगी बोलती 100 कैसे पॉसिबल है, वो सिल्क के हैं सारे, तो वांडा बोलती यस आई एम हैविंग सिल्क एज वेल एज वेलवेट टू, वेलवेट के ये सब प्रीशियस क्लोथ्स हैं, सब अच्छे हेवी क्लोथ जिसको तुम लोग बोलते हो। तो वांडा बोलती कि यस मेरे पास सिल्क के भी हैं, वेलवेट के भी हैं, और वो चुपचाप खड़ी हो जाती क्योंकि वो फ्रीली नहीं बोल सकती, वो सिंपली ही बोलती थी, जैसे हार्डली उसके 2 लिप्स ओपन होते थे तभी समझने का ये लड़की कुछ बोल रही है, इतने धीरे वो बोलती थी। वो थोड़ी आगे चली जाती, इतने में ये लोग सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, उसका मजाक करते हैं कि एक लड़की है हमेशा ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आती है, ये कैसे बोल सकती है कि इसके पास इतने सारे ड्रेसेस हैं। तो वो जो छोटी बच्चियाँ थी वो हॉपस्कॉच खेल रही थी, जैसे ही वांडा बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, वो भी रुक जाते हैं खेलना और इसकी बात सुनते हैं, और जैसे ही वो चली जाती है पूरे जो बच्चे होते हैं ऑल द क्लासमेट्स एज वेल एज द स्कूलमेट्स उसका मजाक करना स्टार्ट करते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, ऐसे तालियां मारते हैं, ऐसे सब। उसके बाद देखो 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was a blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. How many shoes did you say you had? 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this, all alike. Oh no, every pair is different, all colors, all lined up. Peggy, who had thought of this game and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull, her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in a funny way she had finishing the walk to school alone. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Bullies means what? Those who used to use their strength or power to frighten weaker people. कुछ बच्चे होते हैं ना जो क्लास में गुंडागिरी दादागिरी करते हैं छोटे बच्चे को, उसको बुली बोलते हैं। पैगी, अभी मैं बताती हूँ, पहले रीड कर लेती हूँ। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज एंड शी क्राइड फॉर अवर्स if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, don't you think that is cruel way to treat Wanda, she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. अभी यहाँ पे दिया हुआ है देखो. Then whenever they asked Wanda that how many dresses she is having, she answered that she has 100 dresses. So next question that Peggy had made to ask to Wanda, how many shoes you are having? So Wanda said 60 pairs and all are different in different colors. तो भी वो शॉक हो जाती. पेगी वो शॉक हियरिंग दिस. पेगी को लगता है ऐसे कैसे पॉसिबल है, 100 ड्रेस तो है, चलो 60 पेयर्स है शूज़ की, वो भी सब अलग अलग कलर्स के और सब अलग अलग वैरायटी के, कैसे पॉसिबल है. तो वाई
वो एक ही फिर ब्लू कलर का ड्रेस क्यों पहन के आती है हमेशा? अगर उसके पास इतने सारे कपड़े हैं तो शी यूज्ड टू वेयर डिफरेंट क्लोथ्स इन एवरी डे। ओके फिर पैगी के बारे में बोला हुआ है कि पैगी जो है शी इज़ नॉट अ क्रूअल गर्ल एक्चुअली, वो खराब लड़की नहीं है। वो हमेशा जो बड़े बच्चे बुली मीन्स दूसरे बच्चों छोटे बच्चों को परेशान करते हैं उनके ऊपर वो उनको चुप कराती थी, या कोई एनिमल को कोई मार रहा है परेशान कर रहा है तो हमेशा उनको भी डांटती थी। शी वॉज अ गुड गर्ल। पर उसको ये बात का गुस्सा आता है कि वांडा ने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेस है। वो ऐसे भी बोल सकती थी मेरे पास 5 है, 6 है, 15 है, 20 है। उसने डायरेक्ट ऐसा क्यों बोला 100 है? ये उसको खटक रहा था, किसको? पैगी को। इसीलिए वो वांडा के साथ इस तरह से ट्रीट करती थी और वो बोलती थी कि वांडा इज़ सिंपल ऑर्डिनरी गर्ल, हमारी जैसे ही है वो भी, तो ऐसा क्यों बोल रही हो कि उसके पास 100 ड्रेसेस है? हाँ, उसका नाम थोड़ा अलग है। और जो मैडी है उसकी क्लोज फ्रेंड थी, जो मैडी बोलती थी वही मैडी बोलती थी। मैडी को अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं था, वो जो मैगी बोले उसका वो बोलती थी। अभी वो ऐसा क्यों करती थी ये भी आगे दिया हुआ है। फिर देखो क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी हैट्स, हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड बॉदरिंग हर। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। हैंड मी डाउन क्लोथ्स मीन्स ओल्ड क्लोथ्स दैट इज हैंडेड बाय द समवन एल्स, किसी ने दिए हुए पुराने कपड़े किसी के, उसको हम लोग बोलेंगे हैंड मी डाउन क्लोथ्स। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। फिर वो भी एक गरीब घर से थी, शी इज़ ऑल्सो पुअर गर्ल। वो भी किसी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहनती थी क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नए कपड़े लाए। बट द गुड थिंग इज़ दैट शी इज़ थैंकिंग हरसेल्फ ओनली। क्यों? क्योंकि वो वॉगिन साइड में नहीं रहती थी और उसका नाम जो है वो वांडा की तरह फनी नेम नहीं था, इसलिए वो खुद को थैंक बोलती थी। और वो मैडी की पैगी की फ्रेंड थी, इसको इसलिए मैडी को कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। इसीलिए वो मैडी जो बोलती पैगी जो बोलती है उसके हाँ में हाँ मिलाने का काम मैडी करती थी। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm in her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. They would never have paid any attention to Wanda. Peggy hadn't invented the dress game, but suppose Peggy and all others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda patronizingly. Wanda जो है, जैसे मैंने तुमको बोला कि she is coming from Bogan side. It was a backward area in America. अभी ये जो मैडी है उसको ये जो पैगी बार बार वांडा को परेशान करती थी वो अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता था। Why? Because we can say that she doesn't have any care about Wanda actually, but she thought that she is also from the poor family. She is also wearing the hand-down clothes. Then, but she is thinking about herself. वो उसके बारे में क्या बोलती है देखो क्या, at least I am having the sense that I could not say 100 dresses I am having. वो बोलती कि मुझे इतनी अकल है कि मैं किसी को ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। वंडा को अकल होनी चाहिए, उसने क्यों ऐसा बोला 100 ड्रेसेस है, इसलिए सब उसको चिढ़ा रहे हैं। बट उसको ऐसा नहीं चिढ़ाना चाहिए, ऐसे मैडी को हर बार लगता था क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली से थी। हाँ, वो इतनी वांडा जितनी पुअर थी उतनी पुअर नहीं थी, थोड़ी ठीक थी उससे, बट वो भी पुअर थी। इसीलिए उसको कहीं पे हार्ट में ऐसा लगता था कि वांडा को बार बार चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, उसको कभी कभी बुरा लगता था। इसलिए वो ऐसे जब वो पैगी कुछ बोले तो हाथ में वो मार्बल के साथ खेलती थी, कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि मन में उसको कहीं पे लगता था कि पैगी जो वांडा के साथ कर रही है वो नहीं करना चाहिए। और इसमें वो वांडा की भी गलती समझती थी क्योंकि वांडा को क्या ज़रूरत थी बोलने की कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ये उसका क्वेश्चन था। फिर देखो टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. She worked her arithmetic problems absent-mindedly. 8 times 8, let's see. She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage. Speak right to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." Then she finished her arithmetic. She did start to Peggy herself a schoolyard
Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with new trimmings, so no one in the room 13 would recognize it. अभी देखो, मैडी को हमेशा ऐसे लगता था, वो उसने काफ़ी बार कोशिश की, उस दिन वो मैथ्स का होमवर्क कर रही थी, बट शी वॉज डूइंग द होमवर्क एब्सेंट माइंडली, क्योंकि उसका माइंड मन लग ही नहीं रहा था उसको। वो किसके बारे में सोच रही थी? वांडा के बारे में। वो यही सोच रही थी कि पैगी को वांडा के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, बस वही सोच रही थी वो, जिसकी वजह से उसने सम्स भी जैसे जैसे होमवर्क कंप्लीट किया। फिर बाद में उसके मन में एक विचार आया कि मैं एक नोट, एक लेटर लिखती हूँ जिसके अंदर मैं पैगी को बोलती हूँ कि हे पेग, देयर इज़ नो नीड टू टीज द वांडा, कि वांडा को चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉप इट, कि अभी ये बंद कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। उसने उसकी मम्मी के साथ भी डिस्कस किया कि ऐसा सब करना नहीं चाहिए। फिर क्या होता है देखो, इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वांडा, ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे. What difference did it make? Slowly, Maddie tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best-liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. और उसको ये भी पता था मैडी को कि अगर पैगी ने ये वांडा का मजाक करना बंद कर दिया तो वो क्लास में शी इज़, वी कैन से दैट, मॉनिटर ऑफ द क्लास, और शी इज़ द हेड गर्ल, उसकी बात सब मानते थे। जिस दिन वो डिसाइड करेगी कि वांडा का मजाक नहीं करना है तो क्लास में नो वन हैज़ करेज टू टीच वांडा। इसीलिए मैडी को हर बार लगता था कि वो जो है पैगी, वो वांडा का मजाक करना बंद कर दे। इसलिए वो हमेशा वांडा के साथ, पैगी के साथ रहती थी। उसके हेयर्स ऐसे जैसे वो पैगी करती थी वैसे उसके साथ ही रहती थी, पर मन में उसको ये लगता था कि जो पैगी कर रही है उसको ये स्टॉप करना चाहिए। As for Wanda, she was just some girls who lived up on Boggin side and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said everything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about 100 dresses. Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was a brilliant jungle green with a red sang. You would like a Christmas tree in that, the girl had said in the pretended admiration. अभी देखो, वांडा ने उनको एक बात बोली थी कि उसके पास 100 ड्रेस है। उसने बोला कि मेरे पास ऐसा एक ड्रेस है जो मैडी के ऊपर सूट करेगा। वो ड्रेस कैसा है? उसका ब्लू कलर का ड्रेस है, पेल ब्लू कलर, और उसके ऊपर ऐसा ट्रिमिंग्स किए यानी कट किए हुए हैं डिज़ाइन। और इसके लिए बोलते हैं वो पैगी के लिए कि पेग, मेरे पास तेरे लिए भी ऐसा एक ड्रेस है जो ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर है उसका, और उसके ऊपर रेड कलर के सैशेस है, यानी ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है। ऐसा वो किसको बोल रही है? वांडा मीन्स बोलती थी पहले, अभी तो वो एब्सेंट ही है। ये उसको याद आ रहा है। किसको याद आ रही है? मैडी को, कि एक दिन वांडा ने हमारे लिए ऐसा बोला था कि मेरे लिए, यानी मैडी के लिए, वांडा के पास एक ब्लू कलर का ड्रेस है जिसके ऊपर ट्रिमिंग्स किए हुए हैं, और पैगी के लिए जंगल ग्रीन कलर का उसके पास एक कलर वाला रेड सैशेस उसके ऊपर है, ऐसा फ्रॉक है। उसको याद आ रहा है। अभी देखो क्या होता है। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys, of designing motorboats. Probably Peggy would win the girls' medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least, that's what everybody thought. She could copy a picture in the magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winners. They would know. अभी देखो क्या हुआ। ये जो मैडी है वो हमें वांडा के बारे में सोच रही है, और उसको अचानक से याद आता है कि उनके स्कूल में एक कंपटीशन कंडक्ट किया गया था। गर्ल्स को क्या करना था? डिज़ाइन बनाती थी ड्रेसेस की, और बॉयज़ को जो है वो मोटर बोट्स की डिज़ाइन बनाती थी। वो एक कंटेस्ट था, और पूरे क्लास में सब लोग जानते थे, इंक्लूडिंग ये मैडी, कि पैगी ही जीतेगी। क्यों? क्योंकि पैगी का ड्राइंग पूरे क्लास में अच्छा था। वो सबको ऐसा लगता था कि पैगी जो है वही जीतने वाली है। ये मैडी वो श्योर। फिर बाद में उनको कैसे पता चलता? क्योंकि द टीचर इज अनाउंसिंग द रिजल्ट ऑन द नेक्स्ट डे पे रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, पर सबने अपना मन बना लिया था कि पैगी वुड गेट द फर्स्ट प्राइज बिकॉज शी इज़ हर ड्राइंग इज़ वेरी नाइस इन द क्लास।
The next day it was drizzling. Maddie and Peggy, drizzling means what? The very light rain was falling, है ना, थोड़ी थोड़ी बारिश आना, showers जिसको हम लोग बोलते हैं. The next day it was drizzling. Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronuski on the corner of Oliver Street. The street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggin's Height. Anyway, they weren't taking chances on being late today because today was important. Do you think Miss Mason will announce the winners today? Asked Peggy. Oh, I hope so. The minute we get in, said Maddie, of course you will win, Peg. Hope so, said Peggy eagerly. अभी देखो तुम लोगों का डिस्कशन चल रहा है. नेक्स्ट डे दे आर getting ready for the school, but some rain is coming, light rain is coming. So Maddie went to school in Peggy's umbrella. जब वो गए तब वो हमेशा ओलिवर स्ट्रीट, जो ऐसा रास्ता था जहाँ से दूर पे बोगिन हाइट्स यानी थोड़ी ऊंचाई पे था, वो वहाँ से कौन आता था? वांडा. और ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे. आज वो नहीं रुके, वांडा का मजाक करने के लिए ओलिवर स्ट्रीट पे नहीं रुके. क्यों? क्योंकि वो लेट हो रहे थे. आज उनका रिजल्ट था. ऑल आर एक्साइटेड. और फिर बाद में वो बोलते देखो कि मिस मसन, उनकी क्लास टीचर होती है, मिस मसन जो है वो आज रिजल्ट अनाउंस करने वाली है. तो मैडी पैगी को बोलती कि पैगी यू डेफिनेटली वुड गेट द फर्स्ट प्राइज. तो पैगी की थोड़ा ईगरली होती है, यस वाई नॉट, यानी उसको थोड़ा ईगो होता है कि हाँ मैं ही आऊँगी, क्योंकि किसी का ड्राइंग अच्छा है ही नहीं. फिर क्या होता है देखो, द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम they hopped, shot and gasped. They were drawing all over the room, on every ledge and window sill, dazzling colors, brilliant, lavish designs, all round on the great sheets of wrapping papers. They must have been 100 of them, all lined up. This must be the drawing for the contest. They were. Everybody stopped and whispered and murmured admiringly. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winner. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketches by all other boys. अभी क्या हुआ देखो, एक सेकंड. एज फॉर, फिर टीचर क्लास में आती है, वो लोग क्लास में बैठते हैं, सब लोग ऑन आर अवेटेड फॉर द रिजल्ट. वो रिजल्ट को वेट करें कि कब आएगा कब आएगा. फिर मिस मसन क्लास में आती है, वो अनाउंस करते हैं कि बॉयज़ में जैक बेगल्स जो है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, क्योंकि उसने आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन बनाई थी मोटर बोट की. उसकी डिज़ाइंस इंक्लूडिंग अदर बॉयज़, जो भी डिज़ाइंस है वो रूम नंबर 12 में है. 1 by 1 सबको लाइन में जाना है क्यू में, और वो डिज़ाइंस देखनी है, ऐसा टीचर ने बोला. As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl, and room 13 should be proud of her, and this girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of the judges, any one of the drawing is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronuski is the winner of the girls medal. फिर टीचर ने क्लास में बोला कि गर्ल्स में हार्डली, बहुत ही कम लड़कियों ने 1 या 2 ही ऐसे ही ड्राइंग दिए थे, बट एक लड़की है क्लास में जिसने 100 ड्राइंग्स दिए, वो है वांडा पेट्रोनस्की. और वो ऐसी लड़की है जिसने 100 ड्रेसेस सब अलग अलग कलर के, सब अलग अलग डिज़ाइंस के ड्रॉ किए हुए हैं. और वो लड़की को फर्स्ट जो प्राइज़ है वो जा रहा है. और जजेस ने यही डिसाइड किया है कि ये 100 ड्रेसेस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं. वो रूम नंबर 13 में ही, किसी को देखने तो सब वॉल के ऊपर, बेंचेस के ऊपर, सब जगह पे बोर्ड के ऊपर वांडा के डिज़ाइंस लगाए हुए थे. अभी देखो क्या होता है. Unfortunately, Wanda has been absent from the school for some days and is not there to receive the applause that is due to her. Let's hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. Exquisite means what? Extremely beautiful. The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. Look, Peg, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't it beautiful? Yes, said Peggy. And here is that green one, boy, and I thought I could draw. यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. देखो, टीचर ने बोला कि वांडा जो आज एब्सेंट है उसको हमें तारीफ करनी है, उसको अप्लॉज करना है, बट वो एब्सेंट है, वो उसके लिए ड्यू रहेगा.
जैसे ही वो कल स्कूल में आती है तो उसको हम लोग क्लैपिंग करके उसको अप्रिशिएट करेंगे। ये सुन के पैगी को थोड़ा दुख होता है, बट कोई बात नहीं, वो लोग बच्चे होते हैं, कोई ऑलमोस्ट कोई बात नहीं। फिर जो उनको मैंने बोला रफ कोई उनको चांस मिल गया पैर ऐसे बजाने का, सीटी बजाने की, टेबल बजाने का, क्योंकि उनको हार्डली ऐसा चांस मिलता था। उनको ड्राइंग्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि टीचर ने ऐसा बोला कि 1 बाय 1 सबको देखना है ड्राइंग्स को, बस उनको वही चाहिए था, इसलिए वो लोग खुश हो गए। पैगी और मैडी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखो मैडी जो है वो पैगी को बोलती कि लुक पैग, ये ब्लू कलर का ड्रेस जो वांडा मेरे लिए बोलती थी ये रहा वो फ्रॉक, और पैगी बोलती कि हाँ मैडी देख मेरे लिए वो ग्रीन फॉरेस्ट कलर का रेड सैशेस वाला बोलती थी ये फ्रॉक ये रहा। रियली इट इज़ वेरी एक्विसाइट, मीन्स वो बहुत ब्यूटीफुल है। नहीं, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। मीन्स अभी दूसरा पार्ट भी है, दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे, और आई होप तुमको चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग जिसका मजाक करते हैं वो भी कुछ ना कुछ करता है, उसकी भी कुछ क्वालिटीज़ होती है, यही हमको देखना है। यहाँ पे तो आधा ही पार्ट है, मोरल में बताऊंगी नहीं। नेक्स्ट पार्ट जब अपने कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब तुम लोगों को पता चलेगा। अभी तुम्हारा काम शुरू होता है बेटा, तुम लोगों को थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, उसमें कुछ ग्रामर पार्ट भी दिया हुआ है, वो सब तुमको लेसन्स में लिखना है होमवर्क में। इसके साथ में मेरा जो लेक्चर एंड करती हूँ, और मैंने तुमको बोला भी है कि जैसे ही मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, मीन्स नो डाउट दैट कि मैं पूरा चैप्टर रीड करती हूँ, बट एक बार तुमको उसको रीड करना है। ओके, बाय।